So when we talk about trachea, there is a procedure called tracheotomy. Okay, this is the procedure which is done in persons having problem related to the trachea. Okay, like they need to have proper ventilation of air. So this tracheotomy is being done. Okay, the next thing which comes is primary bronchi. Okay, so the primary bronchi are being formed by the division of ट्रैकिया. जो ट्रैकिया आ रहा है वो जब डिवाइड होता है वही आगे चल के क्या बनता है, ब्रोंकाई. ओके, इट एंटर्स द लंग्स एट अ रीजन कॉल्ड हाइलस. ओके, हाइलस के पास से ये क्या करता है, एंटर करता है लंग्स के अंदर. ओके, जो हमारी राइट ब्रोंकस होती है दैट इज wider but it is shorter and more straight, okay, as compared to the left. Okay, bronchi, they are subdivided into smaller and more smaller branches. Okay, जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, सी शेप्ड कार्टिलेजेस से बना हुआ, हाइलिन कार्टिलेजेस से, वो जब आगे जाता है तो हाइलस पे आके ये क्या हो जाता है, लंग्स पे एंटर कर जाता है जहाँ से इसकी डिवीजन होती है. ओके, तो उसमें क्या आता है कि जो हमारा राइट लंग्स है, ठीक है, राइट ब्रोंकस, वो ज़्यादा वाइडर है, ठीक है, मगर छोटा है, शॉर्टर है एंड ज़्यादा सीधा है. Okay, as compared to the left. Okay, this is the right lung. Okay, having 3 lobes. Okay, जब भी कभी आप लोगों ने लंग्स के बारे में जानना हो तो बड़ा इजी है. जो भी लंग्स हैं, जो हमारी राइट लंग होती है उसमें 3 लोब्स होती हैं हमेशा, जबकि जो हमारी लेफ्ट लंग होती है उसमें सिर्फ 2 लोब्स होती हैं. ओके, सो इसमें अगर आप देखो तो ये जो ब्रोंकस है ये सीधा जा रहा है नीचे की तरफ, ओके, जबकि जो लेफ्ट का है ये घूम के जा रहा है नीचे की तरफ. ओके, सो इसमें क्या है, ये ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा है, ठीक है, एंड ये आगे चल के क्या है, सब डिवाइडेड हो जाते हैं, पहले जो है स्मॉलर ब्रांचेस में, फिर उससे भी ज़्यादा स्मॉलर ब्रांचेस के. ओके, क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके, सो जब हम बात करते हैं ब्रोंकस के बारे में, ठीक है, तो दिस इज द मेन ब्रोंकस, okay, which is entering. Okay, this is the lobar or the secondary bronchus and this is the segmental bronchus. Whereas in the right lung, this is the superior lobe which is present in the upper lobe of the lung. This is the middle lobe of the lung and this is the inferior lobe of the lung. Okay, now the lungs. So they are the one which occupy most of the thoracic cavities. Okay, and the clavicles, what are the clavicles? Clavicle क्या होता है बेटा? Yes, anyone? What are the clavicles? माधवी? नो सर, नहीं पता. जसलीन? नो सर. बेटा हम अभी ये चीज पिछले हफ्ते करके हटे हैं स्केलेटल सिस्टम में. इट्स द कॉलर बोन. जो आपका लंग्स का हेड है या एपेक्स है वो बिल्कुल आपकी कॉलर बोन के पास होता है, द सुपीरियर पोर्शन ऑफ योर लंग्स.
बेस जो होता है that is very close to the diaphragm, or you can say it is resting on the diaphragm, and this is called the inferior portion of your lungs. Okay, after that each lung is divided into lobes. Okay, and these lobes are being shown by the fissures. Okay, as I told, left lung is having two lobes, whereas right lung is having three lobes. So this is the diagram of a lung. Okay, you can see it properly. So when we talk about the lobes, so these are 1, 2 and 3, and these are the fissures. ये जो lines हैं बीच में, these are the fissures. Here the one lobe and the other, and divided by one fissure. Okay, so this is the apex area, okay, the superior area, and this is the base or the inferior area. Okay, then these are the trachea or the windpipe, C-shaped hyaline cartilages, after which these are the bronchi, okay, right and left bronchi, and at the end it is being divided into bronchioles, and those bronchioles are being ended by alveoli. Okay, and the whole lung is being covered by a fluid called pleural fluid in a cavity called pleural cavity, and finally downward is the diaphragm. Okay, clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. So this is the other way of looking at the lungs. Okay, so this is the vertebrae from the back side. Okay, you can say this is the posterior part of your body, and this is the anterior. Anterior means front part and posterior means back. Okay, so this is how you can see the bronchi are being divided. They are being again subdivided. Okay, along with them, these are the blood vessels. Okay, and this is the heart. Okay, and then these are all the parts of your lung. This is the cavity, lungs pleural cavity, having pleural fluid in it. Okay, so covering of the lungs. So when we talk about the covering of lungs, so the pulmonary or the visceral or the pleura, it covers the lung surface. Okay, and this lines the wall of your whole thoracic cavity. Okay, this pleural fluids fill the area between the layers of pleura to allow gliding. ओके, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी प्लूरल कैविटी है उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड फिल है, ताकि जब आपके लंग्स हवा लेने के लिए फैलते हैं तो उनमें कोई फ्रिक्शन ना हो आसपास के एरिया में। जब वो ग्लाइड करते हैं तब कोई फ्रिक्शन ना हो, उसको रोकने के लिए क्या ये फ्लूइड बीच में फिल्ड होता है। ओके, so this is how you can see the area wise of structure of lungs. Okay, so this is a normal lung called the inflated lung. Okay, this is the hilum from where the trachea is entering the lungs. Okay, this is the upper layer or suprapleural membrane. This is the cervical pleura. Then this is the mediastinal part of the lungs, and this is the costal part. Okay, this is the diaphragm. Okay, you can say this is the normal lung.
but this is the collapsed lung. Collapse mean either it can be collapsed due to some accident or when someone hit you directly into your thoracic area or lungs area. So you can see the lungs, they are being collapsed. So the pleural cavity is there, visceral pleura is there, but the lung size is very much shorter. So next is the division of respiratory tree. So respiratory tree is divided as primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles, the bronchioles, and terminal bronchioles. Okay, so this is cartilage, okay, of tracheas. So when it enters, okay, into the lungs, this is called primary bronchi. Okay, then when it gets segmented, that is called the secondary bronchi. Okay, when it gets more subdivided into the other part, that is the tertiary bronchi. These are the bronchioles, and these are the grape-like structures are called alveoli. Okay, these are bronchi. All जैसे आपके पेड़ों के ऊपर उनकी टहनियाँ होती है ना, जब वो दिखनी स्टार्ट हो जाएं, दोज आर ब्रोंकाइल्स और ब्रोंक्यूल्स, एंड उनके आगे जब ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखने शुरू हो जाएं, दोज आर एल्वोलाइज. ओके, so this is how the respiratory tree divisions are being seen. So trachea is one, cilia is there, it is made up of smooth muscles and cartilages. Okay, bronchi, okay, they are 2, 4 and 8, okay, at the conducting joints. Cilia is there, smooth muscles is there, cartilages in bronchi is patchy, but in bronchioles it is not present. ओके, देन द रेस्पिरेटरी जोन, जब हम रेस्पिरेशन के पार्ट में आ जाते हैं तब, ओके, तो उसमें क्या है, जो एल्वोलाइज हैं वो प्रेजेंट जब होते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, सीलिया नहीं प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मगर कार्टिलेजेस कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है. और जब एल्वोलर सैक्स बन जाती हैं, जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स आगे बनेंगे, उनमें ना सीलिया होगा, ना स्मूथ मसल्स होंगे, ना कार्टिलेजेस होंगे. और नंबर क्या होगा इनका, 6 × 10⁸. ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रोंक्यूल्स. ओके, स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाइस. जो ब्रोंकाइस की सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांचेस बनती हैं, दे आर टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स. ओके, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, री इनफोर्सिंग कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इनको अपनी दोबारा से सही पोजीशन पे लाके खड़ा कर देते हैं. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, या कहाँ पे मिलते हैं वो, हमें एल्वोलाइज के अंदर मिलते हैं, जब उसकी सैक के आसपास मिलते हैं. दीज आर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ओके, जो किस में जा रहे हैं, एल्वोलाइज में. ओके, Yes, sir. सो नाउ इज रेस्पिरेटरी जोन. स्ट्रक्चर क्या है रेस्पिरेटरी जोन का, तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूलाइज, देन alveolar duct and alveoli. Okay, and then it is called the site of gas exchange. तो ये स्ट्रक्चर है आपका, जो आपका रेस्पिरेटरी जोन है, जहाँ पे एक्चुअल में गैसेस की एक्सचेंज होती है.
Okay, so the first one is, this is the terminal bronchiole. Okay, but here you can see this is the respiratory bronchioles, then the alveolar duct. Okay, then that alveolar duct is being shaded by the alveoli, जहां पे क्या होगा आपका गैस एक्सचेंज। ओके, एल्वोलाइज क्या होती हैं, जो स्ट्रक्चर क्या होता है एल्वोलाइज का, दे कंटेन, फर्स्ट इज एल्वोलर डक्ट, देन कम्स द एल्वोलर सैक, ओके, देन द alveolus, and finally the site of gas exchange. Okay, respiratory membrane in which the air blood barrier is there. इसमें जो एयर ब्लड बैरियर होता है वो कौन बनाता है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर्स की, टिश्यूज की एक लेयर्स होगी। ठीक है, जो किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, एल्वोलर वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, एल्वोलाइज के बाहर के सरफेस को कवर करके रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर और ब्लड का बैरियर बनता है, जहां से क्या बनता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट इज गैस एक्सचेंज। सो जो गैस होती है वो क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाइज में। ओके, मैक्रोफेजेस जो हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज के लिए, एल्वोलाइज हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन, सॉरी मैक्रोफेजेस हमें प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स से। ओके, देन द सर्फेक्टेंट कोट्स, ठीक है, जहां से गैस एक्सपोज होती है एल्वोलर सरफेसेस पे, उनको कहा जाता है सर्फेक्टेंट कोट्स। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, दिस इज द मैक्रोफेज। ठीक है, ये हवा है एल्वोलस के स्पेस के बीच में, और ये मैक्रोफेज कर क्या रहा है कि अगर यहाँ पे उसको कोई भी फॉरेन पार्टिकल दिखेगा, ये फटाफट उसको एनगल्फ करके हमें बचाएगा। ओके, देन कम्स द इवेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सबसे पहले होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, हवा का लंग्स में से निकलना और आना, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड और एल्वोलाइज के बीच में। जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाइज में आ जाएगी। ओके, उसके बाद होता है गैस का ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्टेशन। सो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, ठीक है, वो आगे चला जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस एल्वोलाइज के थ्रू आ जाएगी। हमारे पास दो तरह का ब्लड होता है। ठीक है, वेन्स के अंदर क्या चलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज में क्या चलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलेंगी, जबकि जो वेन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके आएंगे। सो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन चलता है। फाइनली इंटरनल रेस्पिरेशन, तो जो गैस एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ठीक है, इसको कैसे किया जाता है, सिस्टमैटिक कैपिलरीज की हेल्प के साथ पूरा किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट इज मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, जब पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो डिपेंड करता है आपकी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम के चेंज के अंदर। ओके, जब आप सांस लेते हो क्या होता है, आपकी लंग्स में प्रेशर का चेंज आता है, जिसकी वजह से आप सांस को खींच पाते हो, ठीक है, और जब आप सांस छोड़ते हो तब भी प्रेशर में चेंज आता है। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम के चेंजेस के ऊपर, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम का चेंज प्रेशर के चेंज के हिसाब से होता है, जिससे क्या होता है, गैसेस का फ्लो होता है और प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। ओके, समझ आ गई ये चीज बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज दो फेसेस होते हैं मैकेनिकल जो ब्रीदिंग है उसके बीच में। पहला इंस्पिरेशन, हवा का लंग्स के अंदर जाना, एंड एक्सपिरेशन, हवा का लंग्स से बाहर निकलना। ओके, सो इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपका डायाफ्राम है और उसके आसपास के इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइज जो होता है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है, और जो एक्सटर्नल एयर है वो अंदर आ जाती है आपके लंग्स में, क्योंकि जो इंक्रीज है इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम उसकी वजह से, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हो कि जब आप सांस लेते हो ना तो आपका नीचे पेट बाहर की तरफ आता है, मगर आपकी लंग्स का जो एरिया है वो अंदर की तरफ जाता है, जबकि जब आप सांस छोड़ते हो पेट अंदर की तरफ जाता है और लंग्स बाहर की तरफ निकलती है। ये जो है आपका वॉल्यूम है, ये हेल्प करता है आपकी गैसेस की एक्सचेंज और हवा लेने में, सांस लेने में और सांस छोड़ने में, इस तरीके से, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, आपके जो डायाफ्राम है वो डिसेंड कर गया, रिब केज ऊपर की तरफ चला गया, जिसको हम कह देते हैं इंस्पिरेटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। सेकंड क्या होता है, थ्रेसिक कैविटी जो है उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाहर से हवा अंदर आनी शुरू हो जाती है। रीजन, आपकी लंग्स स्ट्रेच हो चुकी होगी, ओके। इसका वॉल्यूम कितना होता है, -1 मिलीमीटर मर्क्यूरी। जो एयर है या गैसेस है वो लंग्स में आती हैं, ओके, कितनी, जितना उसका प्रेशर है, जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड फेज चलता है दैट इज एक्सपिरेशन, ठीक है। ये उसी का उल्टा प्रोसेस है, ठीक है, मगर ये लंग्स की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। जब मसल्स रिलैक्स करते हैं तब क्या होता है, जो हवा थी अंदर वो लंग्स से बाहर चली जाती है, ओके। फोर्स्ड एक्सपायरेशन जो होती है वो हम खुद करते हैं कई बार, जब हम क्या करते हैं, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाय डिप्रेसिंग द रिब केज, ओके। इस तरीके से इंस्पिरेटरी मसल्स जो थे, जो पिछली बारी काम कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे। जो थोरेसिक वॉल्यूम था कैविटी का वो कम हो जाएगा। इलास्टिक लंग्स रिकॉइल जो था वो क्या करेगा, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा और प्रेशर बढ़ जाएगा +1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसकी वजह से क्या होगा, जितनी अंदर हवा थी वो तब तक बाहर जाएगी जब तक के लेवल, जो प्रेशर का लेवल है वो दोबारा कितना नहीं हो जाता, जीरो। दोनों ही केसेस में क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब तक जीरो नहीं होगा तब तक पहले केस में हवा अंदर आती जाएगी और दूसरे केस में हवा बाहर जाती जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन।
ओके, नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स। ओके, ये कब होते हैं? जब हम किसी तरीके की कोई रिफ्लेक्स लेते हैं या कोई वॉलंटरी एक्शन करते हैं, जैसे कि खांसी आना, छींके आना, जिसकी वजह से होता क्या है, लंग्स के अंदर की जो डेब्रीज है, जो वेस्ट है, वो बाहर निकलता है। हंसना, रोना, ठीक है, अवासी लेना, जहाँ हिचकियाँ आना, तो ये नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स में काउंट होते हैं, जिनको हम रिफ्लेक्सेस कह देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ओके, तो जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम 500 ml जो एयर है, ठीक है, हर एक ब्रेथ के साथ आती है। दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ओके, मैनी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को। एक पर्सन का साइज, छोट हाइट में छोटा है, हाइट में बड़ा है, पतला है, मोटा है, ठीक है, सेक्स, मेल है कि फीमेल है, एज, बच्चा है, मिड एज है, टीनेज है, या फिर बूढ़ा है। फिजिकल कंडीशन के बंदा बिल्कुल फिजिकली जो है फिट है, या उसको कोई प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है या लंग्स प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है एयर की, वो होती है जो एक्सपिरेशन या एक्सलेशन के बाद, ठीक है, लंग्स के अंदर रह जाती है, और उसका नॉर्मल नंबर क्या है? 1200 ml, जो हमारी लंग्स के अंदर रहती है, ठीक है। सो जो हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वो ये सब है: इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, सो रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम या वो हवा जो लंग्स में रह जाती है एक्सपिरेशन के बाद, और उसका टोटल अमाउंट कितना है? 1200 ml। ये जो आपकी पर्पल कलर की लाइन है, कलर का दिख रहा है, दिस इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम, 1200 ml। वाइटल कैपेसिटी, ओके, दिस वन, द वाइटल कैपेसिटी, ओके, ये क्या होती है? टोटल अमाउंट उन गैसेस का या उस हवा का जो एक्सचेंजेबल है। तो वाइटल कैपेसिटी जब हम काउंट करते हैं तो वो कैसे काउंट होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इन तीनों को मिला के आपका क्या बनता है? वाइटल कैपेसिटी। ओके, डेड स्पेस वॉल्यूम इसके बीच में आ जाती है, ठीक है, जो हवा कभी भी एल्वोलाइज तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, वो कितना अमाउंट होता है? अबाउट 150 ml। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनल वॉल्यूम, वो हवा जो एक्चुअल में रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचती है, और उसका अमाउंट कितना है? 350 ml। ओके, इनको मेजर करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज स्पायरोमीटर, ठीक है। स्पायरोमीटर कभी देखा है किसी ने? Have anyone seen spirometer from you people? No, sir. एक छोटा सा ना रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या है कि एक पर्सन को कहा जाता है कि आप हवा मारो,
और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी बॉल्स होती है। तो आप जितनी हवा मारते हो बॉल्स कितनी ऊपर तक जाती हैं उसको चेक किया जाता है। दैट मशीन और दैट थिंग इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। ओके, मे बी अब आपको याद आ गया हो, अगर किसी ने देखी हो मूवीज में या बाहर कहीं पे पुलिस के पास पकड़े हुए। ओके, सो